Hello everyone, welcome to GChem classes. So today we are going to discuss the thermodynamics problem. So what I'm planning that to one day I'll discuss physical, next day inorganic, then again coming to the inorganic, organic, physical, inorganic, organic, physical. Like that it'll go till your examination. Okay, till 11th February because 12th February you have examination, right? And tomorrow wait for tips. Okay, last minute strategy and everything I'm just going to discuss. Okay, so wait for tomorrow, it will be fantastic and you will like it, correct? So from today onwards what I will do, the language I will use, that is English. ओके, ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश, ये इंग्लिश में यूज करूंगा, ठीक है? तो आज से आप दोनों ही खुश है ना, भले आपको हिंदी मीडियम में चाहिए और इफ यू वांट टू इन इंग्लिश मीडियम, बोथ पीपल विल बी satisfied. I know it is a very difficult task to discuss in Hindi as well as in English because one language is very nice to speak, but both the language together it थोड़ा सा difficult हो जाता है. But I will manage because I have to satisfy all of these students, right? तो पूरे इंडिया से आप लोग हैं तो हर जगह से हमको बच्चों को देखना पड़ेगा. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जैम में 2019, 2020, 2021, 2022 में थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया है. सो PYQ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर, करेक्ट? सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द thermodynamics questions and phase equilibrium constant, right? Phase chemical and phase equilibrium, because it will almost look like similar, correct? So I've just filtered only thermodynamics, then remaining I'll discuss, like whenever I'll discuss phase equilibrium, that time I'll discuss all those things, okay? Chemical and phase equilibrium. So today the first question I am taking, that is from 2022, question number 30, right? 2022 से ले रहा हूँ question number 30, correct? सो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूंगा ये आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूंगा. अगर आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है इन डिटेल ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे तो आप हमारे जीकेम क्लासेस ऐप में आइए, वहां जा करके आप जो है कोर्स में ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल ही कम प्राइस में है. देखते हैं साथ में, we'll solve it. What is this question number 30? You can see in the screen, right? So the standard gives free energy changes of the reaction. जैसे जैसे दिया हुआ है हम बोर्ड में लिखते जाएंगे. तो क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस दिया हुआ है. तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो हम ऐसे लिखेंगे. कितना दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है H2O. रिएक्शन से हमको उतना कोई मतलब नहीं रहता है. H2O H2 plus half O2, correct? At 2500 Kelvin, okay? So 2500 Kelvin, the temperature they have given 2500 Kelvin, okay? And then it's plus 118 kilojoule per mole, okay? So this one is plus 118 kilojoule per mole, okay? Don't get confused, okay? Kilojoule per kilo, this K you just don't get confused. आप confused नहीं होंगे, इसको अभी कन्वर्ट कर लीजिए तो इस प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाएगा. 118 गुना 10 to the power 3 जूल पर मोल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना. Without number you can't solve in physical chemistry. Everything will get changed, correct? So now what the equilibrium constant for the reaction is, okay? They are asking the equilibrium constant for the reaction, okay? We'll solve it. In this they have given the R value. I'll just write it down. The R value, it is 8.314 joule per Kelvin per mole. The formula will be delta G equal to minus RT ln K equilibrium, okay? They are asking equilibrium constant, right? So K equilibrium. So better to take log value than ln value, okay? Whenever you are solving this type of question, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ln को कन्वर्ट कर लीजिएगा log में और फिर आप बनाइएगा उस क्वेश्चन को, है ना? तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? तो R, ओके, ln को कन्वर्ट करते हैं तो पहले ही लिख देता हूं मैं, -2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग को, तो ln मिल जाता है ना, इंटू RT और फिर हमारे पास लॉग K इक्विलिब्रियम. अब हमें जो है ये K इक्विलिब्रियम निकालना है, तो कैसे करेंगे? जो जो वैल्यू है डाल दीजिए. ये वैल्यू कितना है आपका? 118 इंटू 10 to the power 3 इक्वल टू -2.303 इंटू R का वैल्यू 8.314 into here it's joule Kelvin, okay, not kilojoule, correct? So 8.314 into
what is the remaining temperature? Temperature will be your 2500 Kelvin. We are not going to write unit now. So, and then finally log K equilibrium. So this we want, so that we will take it out, take it to the left hand side. So it will be log K equilibrium. Okay, log K equilibrium equal to how much it will be? Just everything is in multiplication. So if it is coming this side, the value, if it is coming this side, it will be down. Let me see how it will work. Divided by this minus will be there. 2.303 into 8.314 into 2500. Okay, I'll tell you the value because already I have calculated. We need calculator. In examination, you will have that online calculator. Okay, the same thing you will find in our app also if you are subscribing for test series. One more thing, whatever the PYQ is there, that PYQ you can solve it in our app. It is in free. Okay, and it is free for you. And then the digital calculator and whatever, it's like similar to IIT JAM exam, similar to GATE exam, the platform they are giving you in the computer system, similar you will find there. Just go download GChem classes app and opt for the free the test paper. Okay, previous year question we have just uploaded, you try to solve there. Okay, and then get master of it, because the concept you know, the questions you know how to solve it, but the new interference is there, right? In the computer system you have to see everything, you have to use mouse, scroll, which one you have to solve, which one you already solved, which one you have marked for review, everything you have to do practice, right? So that you can do it with the previous year question which we have uploaded in our GChem classes है, करेक्ट? आप वहां जाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, करेक्ट? अब इसको हमने सॉल्व करके रखा है, इसका वैल्यू हम लिख के रखे हैं, तो वैल्यूज कितना आ जाएगा ये -2.465. ओके, -2.465 ये वैल्यू है. अब ये लॉग के इक्विवेलेंट का वैल्यू है, करेक्ट? लॉग के इक्विवेलेंट का वैल्यू है. सो इसको हम लोगों को एंटी लॉग में बदलना होगा. यदि हमको के इक्विवेलेंट चाहिए, सिर्फ के इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? एंटी लॉग और -2.465 साइंटिफिक कैलकुलेटर में दिया हुआ रहता है. आपके स्क्रीन पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ऑन कर सकते हैं और वहां से ये वैल्यू निकाल सकते हैं. जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका ऑलमोस्ट 0.00, ओके, 0.00342. इसका मतलब ये वैल्यू हमारा क्या है? के इक्विलिब्रियम, इट इज 3.42 into 10 to the power -3. See, your option C will be your correct answer, right? Option C will be your correct answer है. So जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, आपको मतलब एक टॉपिक में जितने क्वेश्चन पूछे हैं 2019, 20, 21, 22, सब क्वेश्चन को एक जगह करके एक क्लास में कंप्लीट रिवीजन में दूंगा आपको, और साथ में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आप सीखते जाएंगे. उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ आप सीखते जाएंगे, है ना? तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बता देता हूं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? द करेक्ट मैक्सवेल रिलेशन. ओके, मैक्सवेल रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा हम लोग जो है एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और वहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको. फ्यूचर में जितना भी तरह का ये मैक्सवेल इक्वेशन देगा आपको, सब सॉल्व हो जाएगा इसी इक्वेशन से. दिस square will help you out for solving all type of thermodynamics question wherever they will say that equation, which equations are correct. Okay, Maxwell relation equation are correct. With this square you can solve it. So just I am drawing the square. Be concentrate on this square. Okay, don't take it lightly. This is the downside. The arrow mark is saying that whatever will come this way it will be positive, whatever will go this way it will be negative. Whatever will come this way it is positive, whatever will go this way it will be negative. S P V T, correct? S P V T. Okay, this much only you required, but I'll give you everything. Okay,
दिस मच इज देयर, करेक्ट। अब क्या करना है हमें, अभी ये मैक्सवेल इक्वेशन में अगर हम लोग इस तरह से आते हैं कहीं पे तो ये पॉजिटिव रहेगा। सपोज एक एक इक्वेशन बस बनाते हैं और बाकी आपके क्वेश्चन में जाते हैं, वहां जल्दी आपको समझ में आएगा ना। हम जस्ट एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप यहां पर करना चाहेंगे डो पी, ये पी ले लिया, डिवाइडेड बाय अगर आपने ले लिया डो एस, ओके, डाउन में क्या है वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब ये जैसे इधर से आपने यहां आया, इसके नेक्स्ट कौन सा है टी, अब ये यहां से शुरू होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होगा, और इधर से आपने इधर आया तो एरो किधर दिखा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आज जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव रहेगा। अब जब इधर से हम लोग ऊपर जाएंगे डो टी, यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस, क्योंकि हम लोग उल्टा साइड जा रहे हैं ना, we are going reverse, so it will be minus, correct? So dou t divided by here next is v, right? So dou v and what is the next s, so at constant entropy. So now you just see this will be the correct relation, okay, minus will be here. So now directly you go to your question and you immediately, I think within 20 seconds you will solve it, that which relation is correct. It is question number 40, it is MSQ, correct? There is no negative marking, but still with this data you will get correct answer only. Let's see, okay, I'm just rubbing this one, I'm just seeing the option number A. What is that option number A? Just I'll write it down, okay, dou S but a dou P at constant temperature equal to minus dou V but a dou T at constant pressure. This is option number A. Just we will verify it whether it's correct or not, okay. So dou S, where is the S? Here, then P, S, then P, then T, S, P, T, means it should be positive, right? Because it is coming from top to bottom. Now T, it's ending here, right? यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है V, अब यहां से शुरू होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा मतलब माइनस होना चाहिए पहले ही सिंबल, तो पहले ही सिंबल माइनस है। अब देखिए V यहाँ पर है तो डो V, देन V के बाद क्या है T, तो डो T, अब T के बाद क्या है P, तो क्या हो गया यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब इक्वेशन ए हमारा सही है, मैक्सवेल रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या है लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका डो एस बटे डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डो टी बटे डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट्स सी, ये क्या दिया हुआ है एस, नेक्स्ट किधर जा रहा है वी, नीचे की ओर जा रहा है, ओके, वी एंड देन टी, कांस्टेंट टी, सो ऐसे जा रहा है मतलब नीचे की ओर, तो यहां पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। अब देखते हैं, अब जब टी में खत्म हुआ तो यहां से शुरू होगा लेकिन रिवर्स में जाएगा, है ना, तो टी ले लेते हैं, तो रिवर्स में जाएगा, तो पी ले लिया हमने, पी के बाद क्या है टी, टी और फिर क्या है वी, ये वी, लेकिन ये क्या है देखिए ये भी वैसे ही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहां पॉजिटिव है, करेक्ट। इसका मतलब हमारा बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है डो टी बटे डो वी कांस्टेंट एस, है ना, एस क्या है एंट्रोपी इक्वल टू डो पी बटे डो एस, ओके, एट कांस्टेंट वी। अब यहां देखते हैं कि क्या होगा, है ना, तो चलिए टी कहां पर है, टी मेरा टेम्परेचर यहाँ, डो टी बटे डो वी कैसे चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, डो वी के बाद ये एट कांस्टेंट एस जो आपका एंट्रोपी है, इसका मतलब ऐसे चल रहा है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं हम नेगेटिव को यहाँ पे रखते हैं ऐसे करके, है ना, हो सकता है अगर उधर भी नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके उसने पॉजिटिव कर दिया, तो हम मान यहाँ लिख करके रखते हैं नेगेटिव कभी P, तो ये कैसे खत्म हुआ TVS, है ना, तो TVS, अब ये P है तो P से इधर नहीं जाएगा, P से इधर आएगा, है ना, तो P के बाद क्या है S और V, तो डो P बटे डो S और V, तो इसका मतलब ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता ये भी अगर नेगेटिव आता तो फिर ये इक्वेशन सही हो जाता है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव इक्वल टू ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव दिया हुआ नहीं है आपके ऑप्शन में, इसका मतलब ये सी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है आपका डो टी। आज के बाद से आप दिमाग में रखा लीजिए, इस तरह का कोई भी इक्वेशन देगा एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट विद दिस स्क्वायर बॉक्स, करेक्ट। सो आप इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप में भेजिए, फिर से हम आपको दोबारा समझाएंगे, ओके। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट हाउ वी आर सॉल्विंग दिस थिंग्स, आई विल डू वीडियो कॉल एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व यू, ओके। मैं आपको वीडियो कॉल में आपको समझा दूंगा कि किस तरह करना है, क्योंकि ये फ्री का मार्क्स है
है ना। MSQ 2 मार्क्स आपको मिल रहा है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको फ्री में मार्क्स मिल रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस बोर्ड में, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू जस्ट डू वीडियो कॉल मी इन व्हाट्सएप, आई विल सॉल्व इट आउट, करेक्ट। सो नेक्स्ट इज इक्वल टू, okay, just write it down, and then s, and next is dou v बटे dou s at constant pressure. Now let's see, dou t, then p, then s, so it is going reverse, so we'll check it minus here. Let's see this one, so it is t, p and s, so अब यह v से शुरू होगा ऐसे, तो v फिर s और फिर p, सो ये भी जा रहा है रिवर्स, तो यहाँ भी नेगेटिव डाल दीजिए। तो नेगेटिव और नेगेटिव लिखने से कोई फायदा नहीं, इक्वल टू के इधर नेगेटिव, इक्वल टू के उधर नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी एंड डी, सी आपका सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा था MSQ में, है ना, 40, क्वेश्चन नंबर 40। मैं बोर्ड मिटा लेता हूं। ओके, सो 2020 में क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 2020 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा है, द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर एंट्रोपी वेरिएशंस ऑफ ए कार्नट साइकिल। ओके, तो एफिशिएंसी दिखाना होता है हम लोग, है ना। कार्नट साइकिल में दो मतलब है बहुत सारे ग्राफ, लेकिन दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो रिलेशन बताता है। एक TS डायग्राम बोलते हैं और एक आपको PV डायग्राम बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो PV डायग्राम है कार्नट साइकिल में, जो PV डायग्राम है ये आपको बताता है वर्क के लिए, और जो आपका TS डायग्राम है ये बताता है आपका किस चीज के लिए, हीट के लिए, है ना। तो PV डायग्राम आपको नहीं पूछा है, तो नेक्स्ट हो सकता है PV डायग्राम आपसे पूछे। इस बार जब TS डायग्राम पूछ लिया, तो TS डायग्राम में आपको हीट से रिलेशन पूछता जाता है और वो वर्क से रिलेशन। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में आपको देख के ही लग रहा है कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। कारण क्या है मैं बता देता हूं आपको, दोनों ही बना देता हूं मैं, लेकिन आपका जो है ये जो बना रहा हूं ये है आपका TS डायग्राम, है ना, एंट्रोपी और इधर टेम्परेचर। इसमें बना देता हूं मैं प्रेशर, और ये हो सकता है इस बार नहीं पूछा है लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर पूछेगा, है ना। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरह बनता है, दोनों को रिलेट कर देता हूं मैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है, तो इस दोनों में क्या है, मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, करेक्ट। यहां पर क्या है आपका, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे V1 V2 V3 V4 भी यहां कर सकते हैं, तो वही कर दीजिए, क्यों चेंज करना है। V1 V2 V3 V4 हमेशा, चाहे ये ग्राफ रहे या ये ग्राफ रहे, दोनों में पहले सिमिलरिटी बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि दोनों में क्या चेंजेस है, इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों। ये वाला जो है आपका, ये Q1 में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, एब्जॉर्ब हो रहा है, और Q2 में क्या हो रहा है आपका, हीट इवॉल्व हो रहा है सिस्टम से बाहर, ठीक है। और यहां पर जो है आपका Q1 और Q2 हो गया, ये जो हो गया ये Q इक्वल टू 0, कोई हीट में चेंजेस नहीं हो रहा है, यहां भी Q इक्वल टू 0, कोई हीट में चेंजेस नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर रिवर्सिबल, है ना, ये जो आपका जो चल रहा है, ये वॉल्यूम जो एक्सपेंशन हो रहा है यहां से यहां तक, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो ये बढ़ रहा है वॉल्यूम इसका, तो ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, जिसके कारण एंट्रोपी भी आपका बढ़ रहा है एट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, है ना, लेकिन जो ये बढ़ रहा है यहां से यहां तक, जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसमें एंट्रोपी भी आपका बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, करेक्ट। अब आ जाते हैं V2 से V3 का जो एक्सपेंशन है, ये भी आपका जो है रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। दोनों में अंतर क्या है, ये भी रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, यहाँ कोई हीट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं इवॉल्व हो रहा है ना। जब V2 से V3 का एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जा रहा है, यहां से यहां तक टेम्परेचर गिर जा रहा है, एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, करेक्ट। अब यहां आ जाते हैं हम, यहाँ पे जो हो रहा है, ये वापस से क्या हो रहा है आपका, रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल क्या हो जा रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन,
है ना। इसमें एक और चीज कर सकते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो हो रहा है ये कैसा है, जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मली, ठीक है, आइसोथर्मली। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहां पर हीट जरा भी चेंज नहीं हो रहा है, हीट हमारा ना ही इवॉल्व हो रहा है, ना ही क्या कहते हैं उससे दे रहे हैं हम उसको, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एडियाबेटिकली, ये भी लगा सकते हैं। फिर वही बात हो गया, यहां पर फिर से आपका हीट क्या हो रहा है, हीट चेंजेस हो रहा है ना, मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा आइसोथर्मली होगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ग्राफ दे दे और पूछेगा कि V1 और V2 के बीच में क्या क्या हो रहा है, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कैसा है ये आइसोथर्मली है। यहां पर भी पूछ सकता है कि ये रिवर्सिबल है, एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिकली हो रहा है, क्यों, हीट जो है नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं इवॉल्व हो रहा है, उस तरह से बता सकते हैं। वापस से इस जगह में क्या क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां कंप्रेशन हो रहा है ना, तो रिवर्सिबल, यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, करेक्ट, कंप्रेशन हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, हीट ना ही इवॉल्व हो रहा है, ना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, क्या कहेंगे इसको आप, एडियाबेटिकली, ठीक है। तो ये इस तरह से, बाकी कोई ग्राफ इस तरह का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आप देखिए कहीं पर आप देखिएगा या तो हीट जरा सा उसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली फॉल नहीं हो रहा है, मतलब जो टेम्परेचर गिर रहा है वो स्लोली गिर रहा है ना, ऐसे गिर रहा है, ये ऐसे गिर रहा होगा, है ना, तो टेम्परेचर के साथ इंट्रोपी भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आइसोथर्मली ले रहे हैं, जो इंट्रोपी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंट्रोपी का कोई रोल नहीं है। यही आपका कार्नोट साइकिल का जो है आपका टीएस डायग्राम बताता है, करेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पर पीवी डायग्राम में। पीवी डायग्राम में भी वही बात है, ये वाला आपका क्या है, आइसोथर्मली, है ना, आइसोथर्मली एक्सपेंशन है, वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना। और ये भी आपका हो गया एडियाबेटिकली, क्या हो जाता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मली रिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिकली रिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहां पर क्या बताता है ये, यहां पर ये वर्क के बारे में बताता है, वर्क डन कितना हुआ वो बताता है, कौन, ये पूरा जो अंदर में है ना, ये एरिया बताता है वर्क के बारे में, ये एरिया बताता है आपको किसके बारे में, हीट के बारे में, क्यों, है ना, हीट के बारे में बताता है। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, बाकी ऐसे भी वो सब नहीं लगता। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कोई आया तो उसको आप बताएंगे। और साथ में और भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि what all it will be, what all it may ask you that whether this what is V1 to V2, if you are going from V1 to V2 what all changes are happening, if you are going V2 to V3 what all changes are happening, if you are going V3 to V4 what all changes are happening, okay, everything is done here, correct. So these two diagram is very much important, one is PV diagram and one is TS diagram, okay. Just look into this. If you want to know in detail in particular medium you come to GChem classes, correct. अगर आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मेरे पास दोनों लैंग्वेज का है ना, इंग्लिश का भी अलग बैच है, हिंदी का भी अलग बैच है, आपको जिस लैंग्वेज में सीखना है whatever language you are preferred, okay, but the written language, like जो भी लैंग्वेज में लिखूंगा बोर्ड में वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन it will be Hindi or English, okay, whatever language you will prefer, based on that I'll put you on that batch, correct. So it will be fully English medium और ये पूरी हिंदी मीडियम रहेगा, लेकिन हिंदी मीडियम में भी बोर्ड में आपका इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा, वो हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। केमिस्ट्री लिया है तो दिमाग में बैठा लीजिए, साइंस की अच्छी बुक इंग्लिश में ही लिखी हुई है ना, तो हमें उस लैंग्वेज को अपनाना ही होगा, करेक्ट, सीखने के लिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लैंग्वेज बाइज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, किसी चीज को सीखना है तो उस पार्टिकुलर लैंग्वेज में जाइए, उस चीज को सीख लीजिए, करेक्ट। सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, सो वील टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द same year. We have question number 33. Let's see what is there in 33. Question number 33. Okay, very nice question. So I'll rub the board. So question number 33. Okay. In the year of 2020, question number 33, you can see in the screen the water, in water the enthalpy of a protein, is MSQ, right? The enthalpy of a protein in its folded state. Okay, I'll just write it down how it is written.
HF is a folded state of enthalpy is lower than that in its unfolded state. So it is lower than unfolded. Okay, the protein in water. Okay, the entropies. Okay, they are asking now entropies. Entropies of the folded and unfolded states are SF and what is this? SF is folded proteins molecules entropy, and SUF is unfolded protein molecules entropy, correct? Respectively, the conditions under which this protein spontaneously folds in water at a temperature T. So at a temperature T, and the word they have mentioned spontaneously. In spontaneously means delta G should be negative, then only spontaneous will work. So whatever we are changing here, the equation, it should be like your final upcoming, like the result, final result should be negative, otherwise it won't be spontaneous, right? Spontaneous करने के लिए हमको overall जो है रिएक्शन कंडीशन को नेगेटिव करना है. अगर वो नेगेटिव होता है तभी हमारा ये स्पॉन्टेनिटी को ये करेगा और फिर हमारा इक्वेशन सही है. तो जो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये चार कंडीशन दिया है कि वेदर दिस कंडीशन इफ यू आर फुलफिलिंग आवर फाइनल डेल्टा जी वैल्यू इज like finally it is negative or not. So आपको लाना क्या है, आपको यहाँ पे नेगेटिव लेकर के आना है ना. नेगेटिव आ गया अगर इस कंडीशन में, तो आपका जो ऑप्शन से आपका नेगेटिव आ रहा है वो सही है फिर, और जो ऑप्शन से आपका नेगेटिव नहीं आ रहा है वो गलत है, करेक्ट. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस. सो इस इक्वेशन में बैठाएंगे और हम लोग निकालेंगे. और हमें पता है सबसे पहले एच एफ अनफोल्डेड का ज्यादा है और फोल्डेड का कम है ना. अनफोल्डेड का ज्यादा है और फोल्डेड का कम है, तो डेल जी बराबर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एच एफ माइनस एच अनफोल्डेड. सो ये वाला पार्ट तो मेरा पॉजिटिव, फोल्डेड माइनस अनफोल्डेड. हाँ, फोल्डेड माइनस अनफोल्डेड करेंगे तो ये वैल्यू मेरा कम है, ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस जगह से जो आ रहा है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट. ठीक है, इस जगह से जो आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है. अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गया और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन को पॉजिटिव कर देगा. लेकिन अगर ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है, अब हमें कंडीशन क्या करना है, इस कंडीशन को हमें नेगेटिव ही बनाए रखना है, करेक्ट. दिस कंडीशन इफ इट इज इन नेगेटिव ओनली, then only del G will be, overall reaction will be negative, because first half the del H it's already negative because del H, the HF value is lesser than HUF, right, unfolded. So obviously from smaller, if you are substituting the higher one, larger one, it will be negative. So first part is negative. Let's see the second part how it will work. So T already T it's had given del S. Del S means what all condition we can put it here, so it will be negative. It should not be positive. Okay, it should be negative. This part is also negative, then only your entire thing will be negative. So now del S. So first option is, we'll just write it out, the options. Based on that we will just confirm it whether this del G is negative, it's coming or not. Okay, अब देखिए क्या है, अनफोल्डेड का पहला कंडीशन दिया है, अनफोल्डेड का एंट्रोपी अगर कम हुआ फोल्डेड से तो क्या होगा, है ना. तो देखिए क्या होगा, हम मेरा फॉर्मूला जो है ये एस एफ माइनस एस यू एफ ये है. अब देखिए अगर ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है, ये कम है और ये ज्यादा है, और एस एफ से अगर हम यू एफ को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव हो रहा है. और ये पॉजिटिव को माइनस से अगर हम डील करेंगे, पहला कंडीशन का हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव को अगर माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. और इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन थोड़े हो रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगा. दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव ऑल टुगेदर इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, करेक्ट. बिकॉज दिस लाइक इफ इट इज नेगेटिव 2 एंड दिस विल बी नेगेटिव 3, हाउ मच इट विल कम, नेगेटिव 5, राइट, माइनस 5 इट विल कम. सो लाइकवाइज now the first condition is satisfying, correct. So option A is correct. Now going to the option B. Option B is entropy of unfolded equal to 0. If entropy of unfolded equal to 0, what is happening? See, SF minus 0 equal to SF, and the SF is positive. Again it is coming positive. So positive and negative, it will be negative. So negative negative, finally it is negative, it is coming. So it is spontaneous, correct. Now option C, if you are not able to understand this, you just ask me in WhatsApp, correct, or else you just watch it 2 or 3 times, you will get to understand, correct. Now option C is S unfolded equal to entropy of folded one.
Now if both are equal, suppose both are equal, so suppose equal means if it is 5 and this factor is also 5, so 5 minus 5 it will be 0, so 0, so 0 into t it will be 0, so already this one is minus, right? So again the minus negativity is coming del g, right? This part is 0, so negative minus 0 it will be negative itself, so option C is also correct, right? Now option D, what is there in option D? It has given SF minus SUF is greater than, okay, HF minus HUF divided by T. Okay, they have given that this value is greater than this value divided by T, right? Let's see. Okay, this whatever this value is coming, it is greater than this value. If this value is greater, okay, if this value is greater, means the greater itself it is in negative, right? There it is not showing that this value is negative value. Whatever the value it is coming here, यहाँ पर जो भी value इसको माइनस करके आएगा, ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये मेंशन नहीं किया, बस इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि whatever value you are getting after minusing these two is greater than your this value, right? So if let it be greater, but the symbol it is not changing, row, so it is minus itself, right? So minus, and whatever lesser value it will come, it will also minus. So minus and minus, it will be again minus. So option D is also correct. So this question also we have solved. So if you have any kind of doubt, you can ask me, right? और भूलिएगा नहीं, आपको अगर टेस्ट सीरीज मतलब जो PYQ है उसको अगर प्रैक्टिस करना है एज ए एग्जाम पेपर, आप जाकर के जीकेएम क्लासेस में कर सकते हैं उसको, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. I think in 2020 there is no more questions from thermodynamics. Whatever is there, that is from chemical equilibrium, right? Phase equilibria. So the next question from 2019, question number 2. 2019 question number 2. So what it says, the thermodynamic criterion for spontaneity. Again spontaneity. Wherever the spontaneous or spontaneity word will come, it should be negative. Okay, the final answer should be negative. If it is positive, then it will be non-spontaneous, correct? So again, spontaneity it has came here of a process in a system under constant volume and temperature. Okay, whatever they have given, constant volume and temperature, okay, both are constant in the absence of any work other than expansion work. Okay, in absence of any work other than expansion work. Expansion means in vacuum, if one molecule is expanding, okay, if one gas molecule we have kept in a vacuum, it will start expanding, right? So there will be net work done will be 0, right? So now the 4 options is it has given. So let's see, first one is change in entropy is positive. Okay, change in entropy is positive, they are saying. First option they are saying that delta S is positive. So one thing you should be in mind, if you are increasing temperature, your entropy will increase. If you are decreasing temperature, your entropy will also decrease, correct? So that means if you are putting constant temperature, your entropy delta S will be 0, right? Change in entropy will be 0. But in option A they have given entropy change is positive. It means your entropy changing when the randomness will change, randomness will increase, and randomness will increase when temperature you will increase, right? So that means option A is wrong. Now coming to the option B. What is option B में क्या दिया हुआ है? Change in enthalpy is negative. Okay, change in enthalpy is negative, it says. Okay, change in enthalpy. So enthalpy that there is the, like, if you are increasing the temperature, your enthalpy change will be faster. Option number C देखते हैं. Option number C में क्या है? Change in Helmholtz free energy is negative. Okay, यहाँ एक word आया है negative. इसके पहले वाला भी नेगेटिव था, लेकिन उसमें क्या है, आपका इंथैल्पी चेंजेस में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हो, करेक्ट? ऑप्शन सी में देखते हैं. ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये है क्या? ये वैल्यूएबल, ओके, यूजफुल वर्क. सो हाउ मच यूजफुल वर्क यू आर गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम, दैट ओनली डिस्कस इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, करेक्ट? सो इफ इट इज नेगेटिव, well and good, it will be spontaneous. If it is positive, then it will be non-spontaneous, correct? So this condition, if you see the definition itself for a Helmholtz free energy, you will see that at constant volume and temperature, the Helmholtz free energy will be negative. So what is this? Minus
del F equal to here it will be H and then minus H and then it will be plus P delta S. Okay. So generally it will be F equal to del H minus P delta S. So if you are taking minus, okay, if you are taking minus at constant temperature and volume, what will happen? Everything will be changing to this. Here it will be minus, here it will be minus, minus and minus, here it will be plus. So now this one is spontaneous, correct? This one is spontaneous here because itself it is in option C, this change in Helmholtz free energy is negative. Okay, so for negative it will be your spontaneous one. So option C is correct. What is in option D? Change in Gibbs free energy is negative. Okay, change in Gibbs free energy is negative. There your volume will like volume changes will take place. Okay, that work done P delta V is there. No, so P delta V will play a major role here because delta V volume is getting changed. So option D is also not correct. So option C. Okay, option C will be your correct answer. Tomorrow we are going to discuss like I told that one day it will be physical, one day it will be organic and one day it will be inorganic. So today I have discussed your physical. Tomorrow I will take up inorganic. Topic will be coordination complex. I will take it. In that, number of unpaired electron, magnetic properties, hybridization, shape of the molecule, and then your John Taylor distortion is there or not. Everything will be in one shot. I'll make a video and I'll give you in this YouTube. Okay, so आप देखते रहिए YouTube का वीडियो और पढ़ते रहिए। यहाँ पर जो भी मैंने आज पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब इतना क्वेश्चन और इतना कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि खास करके जिसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सवेल रिलेशन जो था वो सबसे अच्छा था आपके लिए। प्रैक्टिस कीजिए उसको, कहीं पे लिख के रखिए उस बॉक्स को और प्रैक्टिस कीजिए। लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, है ना, उधर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटने वाली है और एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।